Shah. I'm a final year student from the Department of Civil Engineering. I'm here to deliver my presentation on the topic which is entitled as Hazardous Waste Management. So without any delay, let's start. Here is the entire list of the subtopics we will be covering up. First, we will begin with the definition of hazardous waste, then their sources, their characteristics, list of hazardous waste, what are the different hazardous chemicals, or then hazardous waste control measures, their different methods, and finally their disposal. Moving ahead, we have hazardous waste. What is hazardous waste? Hazardous waste होता क्या है? कोई भी चीज जब हम यूज करके उसके रेजिड्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं, अगर उस डिस्कार्डेड चीज से हमें या हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचे तब हम उसको hazardous waste कहते हैं. Examples include drain cleaners, oil paints, motor oils, antifreeze, pesticides, herbicides, and हमारे जो भी medical wastes होते हैं, etc. etc. Moving to the next slide, we have sources of hazardous waste. What are the different sources of hazardous waste? Hazardous waste is generated from many sources, ranging from industrial manufacturing processes to our household wastes. Which examples include clinical wastes, waste oils, waste water mixtures, waste emulsions, waste from the production, formulation, and use of resins, wastes resulting from the surface treatment of the metals or plastics, or residues arising from the different industries, or wastes which contain certain compounds like copper, zinc, cadmium, mercury, lead, and asbestos, or household wastes after we incinerate, or household residues after incineration. Moving to the next slide, we have some pictures of the sources of hazardous waste. Then concern about hazardous waste. हमें फिक्रमंद क्यों रहना चाहिए hazardous waste की ओर? Because it can cause mass life and material damage, it can cause environmental damage, it can cause long-term irreversible health risks like it can cause fatal diseases like cancer, tumor, etc. Or high concerns of transboundary movement of toxic waste. Moving ahead, we have some dumping sites which are fully contaminated and which have deteriorated the soil, natural soil. Then how to classify whether the waste is hazardous or not? हम कैसे डिसाइड करें कि ये वेस्ट जो हमारे पास है ये hazardous है या नहीं? Using defined list of the criteria as specified by US EPA, United States Environmental Protection Agency ने कुछ लिस्ट दी हुई होती है, उस हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. Then identifying components of the waste. अगर हमें पता चल जाए कि इस वेस्ट में कौन-कौन से components हैं जो hazardous है, तो हम उस हिसाब से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. और based on the characteristics of the waste, अगर हमें वेस्ट की खुसूसियात पता चल जाए जैसे रिएक्टिविटी, इग्निटेबिलिटी, कोरोसिविटी और टॉक्सिसिटी, ऐसे खुसूसियात पता चल जाए देन हम उसको उस हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, हियर इज द ब्रीफ क्लासिफिकेशन. जो मैंने आपको बताया यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कुछ लिस्ट दी हुई होती है. वो लिस्ट क्या है? एफ लिस्ट, के लिस्ट, पी लिस्ट एंड यू लिस्ट. ये 4 लिस्ट है. एफ लिस्ट में कौन कौन से वेस्ट्स आते हैं? इनमें नॉन स्पेसिफिक सोर्सेज से जो भी वेस्ट्स हमारे जनरेट होते हैं वो एफ लिस्ट में आते हैं. फॉर एग्जांपल जो भी हमारे कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनते हैं, जैसे हमारी वाटर बोतल है, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट तरीकों से बनाती है, तो डिफरेंट वेस्ट्स जनरेट होते हैं. वो वेस्ट्स हमने एफ लिस्ट में रखे हैं. देन के लिस्ट. के लिस्ट में कौन कौन से वेस्ट्स आते हैं? ये इसमें वो वेस्ट आते हैं जो स्पेसिफिक सोर्स से जनरेट हो. फॉर एग्जांपल जो भी हमारे वेस्ट ऑयल, रिफाइनरीज या पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से जनरेट होते हैं. उसके बाद है पी लिस्ट एंड यू लिस्ट. पी लिस्ट एंड यू लिस्ट में कौन से वेस्ट आते हैं? इसमें वो वेस्ट आते हैं जो हमारे कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमने डिस्कार्ड किए होते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारे मेडिसिन आते हैं वो विद एक्सपायरी आते हैं. आफ्टर एक्सपायरी हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं और वो वेस्ट हमारे पी लिस्ट एंड यू लिस्ट में आते हैं. देन कैरेक्टराइज्ड वेस्ट. कैरेक्टराइज्ड वेस्ट जो मैंने आपको बताया कुछ खुसूसियात की बिना पे ही हम इस वेस्ट को क्लासिफाई करते हैं. जैसे इग्निटेबिलिटी हुआ, जिनका फ्लैश पॉइंट लेस देन 60 डिग्री हो, ये मेनली आते हैं पेट्रोलियम वेस्ट्स और अल्कोहलिक वेस्ट्स. देन कोरोसिविटी मतलब जो हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक हो. देन रिएक्टिविटी मतलब जो हाईली एक्सप्लोजिव हो. जो भी हमारे डिफेंस पर्सन्स होते हैं उनके पास जो वो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जब वो इनको डिस्कार्ड करते हैं तो वो हाई रिएक्टिविटी दिखाते हैं. देन टॉक्सिसिटी मतलब जो हाईली पॉइजनस हो. आफ्टर देन देयर इज यूनिवर्सल वेस्ट. यूनिवर्सल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो हम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते, जैसे हमारी बैटरीज है, पेस्टिसाइड्स है या इक्विपमेंट कंटेनिंग मर्क्यूरी है. Moving ahead, we have mixed waste.
मिक्सड वेस्ट में क्या आता है, जो भी हमारे रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं या रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं और साथ साथ में वो हजार्डस हो। फॉर एग्जांपल हमारा यूरेनियम है, मॉलिब्डेनम है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, वो हमारे मिक्सड वेस्ट में आते हैं। देन ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या क्या आता है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जैसे सेल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, आफ्टर देयर डिजाइन लाइफ इज ओवर तब हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं और ये हमारे लिए एक हजार्ड बन जाते हैं जो हमने ई वेस्ट में क्लासिफाई किए हैं। Then there are hazardous chemicals. What are the different chemicals which are hazardous? Here is arsenic, lead, benzene, chromium, then toluene, cadmium, zinc, mercury, pesticides and electronic wastes. जो भी electronic waste में जो भी chemicals होंगे वो. Then hazardous waste control measures. अब मतलब एज एन इंजीनियर हम तो इसको मतलब खत्म नहीं कर सकते, जो भी हमारे पास ये हजार्डस वेस्ट आते हैं हम इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी या बाय मटेरियल सब्स्टिट्यूट और बाय गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मतलब हम वेल स्किल्ड पर्सन्स को इंडस्ट्रीज में लगाएंगे और हम वेस्ट को अवॉइड करेंगे, वेस्ट को मिनिमाइज करेंगे और वेस्ट को रिसाइकिल करेंगे बाय डायरेक्ट रीयूज और बाय रिक्लेमेशन, या हम वेस्ट को ट्रीटमेंट देंगे और अगर और फाइनली हम वेस्ट को सिक्योरली या सेफली डिस्पोज कर देंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड्स। अब ट्रीटमेंट मेथड्स में क्या क्या आता है, स्लाइड। उसके बाद है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और है हमारे पास थर्मल। फिजिकल में क्या आता है, स्क्रीनिंग आता है, ग्राइंडिंग आता है, इवापोरेशन आता है, सेडिमेंटेशन आता है, फिल्ट्रेशन आता है। उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट। हमारा मोटिव ये होता है कि जो हजार्डस वेस्ट है हम इसको किसी और कंपाउंड में या नॉन हजार्डस वेस्ट में तब्दील करें। तो हमारा जो केमिकल ट्रीटमेंट में आता है वो ऑक्सीडेशन आता है, रिडक्शन आता है, न्यूट्रलाइजेशन आता है या हाइड्रोलिसिस आता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या आता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे जो भी कंपोस्टिंग आती है या एरोबिक एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन आता है या हमारे पास एंजाइमिक ट्रीटमेंट आता है। उसके बाद थर्मल ट्रीटमेंट। थर्मल ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम इंसिनरेशन कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं या यूवी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद here is hazardous waste disposal methods। अब हमारे पास hazardous waste आ गया, हम इसको कैसे डिस्पोज करें। डिफरेंट मेथड्स है जो हम एंशिएंटली मतलब जो हम सदियों से करते आ रहे हैं वो है सिक्योर लैंडफिल्स। हम हजार्डस वेस्ट को ड्रम्स में भरकर सिक्योरली लैंड में फिल कर देते हैं या सॉइल में फिल कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर से एक इम्परवियस कैप रखते हैं, मतलब इसमें एक सॉइल ऐसी लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स ऐसे रखते हैं कि प्रेसिपिटेशन डायरेक्टली या पेनिट्रेट उसको हजार्डस वेस्ट को ना करे, ताकि जो इससे लीचेट प्रोड्यूस हो वो हमारी ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट ना करे। उसके बाद हमने इसमें ये पाइप्स रखी हुई होती है जो लीचेट कलेक्शन पाइप्स होती है, उसमें हम ये क्यों देते हैं, क्योंकि जो भी इससे लीचेट कलेक्ट हो वो डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में ना जाए, हम उसको ट्रीटमेंट प्लांट में लेके नॉन हजार्डस वेस्ट में चेंज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट डिस्पोजल मेथड्स, वी हैव डीप वेल डिस्पोजल मेथड। डीप वेल डिस्पोजल मेथड में क्या करते हैं, हम जो भी हमारे वेस्ट इंडस्ट्री से निकलते हैं तो हम उसको जो मेनली वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट में होता है और वो बड़ी क्वांटिटी में होता है, तो हमारे पास सिक्योर लैंडफिल्स का मतलब ये हम नहीं सोच सकते क्योंकि हमारे पास उतनी लैंड अवेलेबल नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट एक्वायर से लेके हम सलाइन वाटर या ब्रैक्स वाटर में उसको इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये बोर हम लगाते हैं उसमें केसिंग लगी हुई होती है ताकि जो हमारा हजार्डस मटेरियल है वो ग्राउंड वाटर या फ्रेश पोटेबल वाटर के कांटेक्ट में ना आ जाए। और इसमें मॉनिटरिंग वेल्स हम रखते हैं, डिफरेंट मॉनिटरिंग वेल्स जो डिफरेंट एक्वायर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसके वाटर को हम डिफरेंटली या विद टाइम उसको हम चेक करते हैं ताकि ये कंटेमिनेट ना हुआ हो। उसके बाद बेडरॉक डिस्पोजल। बेडरॉक डिस्पोजल क्या होता है, जो भी कंक्लूजन यह है कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कि हमें बर्निंग एंड बोरिंग से आगे बढ़कर हमें इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना चाहिए जो हमें कम से कम वेस्ट जनरेट करे और हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाकर हजार्डस वेस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए। थैंक यू। डिफरेंट तरीके से हमें इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सपोजर जैसे हम इनहेल कर सकते हैं, जैसे मर्क्यूरी है, मैंने बताया मर्क्यूरी हजार्डस वेस्ट है
जैसे हमारी जैसे आर्सेनिक है हमारा, जैसे आर्सेनिक है तो हमारी सेल्स में पेनिट्रेट होके या एब्जॉर्ब होके रेस्पिरेशन को इफेक्ट कर सकता है या हमारे लिवर को डैमेज कर सकता है। लीचेट एक ब्लैक फ्लूइड होता है। जैसे आपने डंपिंग साइट्स पे देखा होगा कि जब हम वेस्ट को डंप करते हैं या स्टोरेज टेम्पररी स्टोर करते हैं, वहाँ पर एक ब्लैक फ्लूइड निकलता है जो लिथल होता है, उसे हम लीचेट कहते हैं। चलो मुझे बोलो, आप यूवी रेज से कैसे ट्रीटमेंट होती है उनका एक्शन क्या रहता है? मतलब उतना डीप नहीं पढ़ा है, मतलब बस एक पॉइंट पढ़ा है कि इससे यूवी ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। ओके चलो, एलिस्ट सर्टेन सोर्स कलेक्शन मेथड्स कैसा हम लोग सुनते हैं सारा सोर्स कलेक्शन मेथड। सोर्स करेक्शन मतलब सोर्स में ही कैसे एलिमिनेट करेंगे हजार्ड? सोर्स को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, जैसे कुछ हम मटेरियल सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर हमारे पास कोई मटेरियल है जिससे वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हम उसके बाद सब्स्टिट्यूट कोई और मटेरियल करेंगे जिससे हमारी एफिशिएंसी भी ठीक है निकले और हमारा जो वेस्ट है वो कम जनरेट और हम वेल स्किल्ड पर्सन को इंडस्ट्रीज में लगाएंगे जो वेस्ट मिनिमाइज जितना हो सके उतना मिनिमाइज करें। बहुत अच्छा।